Welcome SVPites to our presentation on chapter number 5, The Lost Child, and this is part 1 of our presentation. So, the writer of this chapter is Mulk Raj Anand. Who is the writer of this chapter? Yes, it's Mulk Raj Anand, and he wrote the famous book called The Lost Child, and we are going to read the chapter on it. Yes, so let's continue. Chapter number 5, The Lost Child was lost in a fair. So this story is about a child who got lost in a fair. एक बच्चे के ऊपर स्टोरी है जो मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन वहाँ पे वो खो जाता है. ओके, सो बिफोर गोइंग ऑन लेट्स सी व्हाट्स ओवर हियर. व्हाट आर द क्वेश्चंस आर देयर. Think of a time in your life when you experienced panic and scare. Tell the class about it. Now what you have to do is you have to think of a time in your life that at some part of your life you were scared or panicked. Now you have to tell that about that in your class. तो आपको ऐसे टाइम के बारे में बताना है. सपोज आपकी लाइफ में आप किसी टाइम पे पैनिक हुए हो, डर गए हो, राइट, तो उस सिचुएशन के बारे में आपको अपने क्लास में बताना है अपने फ्रेंड्स को. ओके, नाउ list all the things that you wish you had and those that you want to buy. Share the list with the class. Now what you guys have to do, you have to take a page. You have to make 2 columns in it. In one of the column you have to write the things which you wish to had. आप विश करते थे कि आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए. एक कॉलम में आपको उन चीज़ों के बारे में लिखना है, राइट. एंड दूसरे कॉलम में आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट दोज थिंग्स दैट यू वांट टू बाय. जो चीज़ें आपको ख़रीदनी है आपको दूसरे कॉलम में उन चीज़ों के बारे में लिखना है. ओके, एंड देन यू हैव टू शेयर दैट लिस्ट इन योर क्लास. आपको वो जो लिस्ट है पढ़कर अपनी क्लास में बतानी है. नाउ you go to a very crowded place and something unexpected happens. Describe it. Now in this case you are in a imagine you are in a very crowded place. बहुत ही भीड़ है एक जगह में, and over there some unexpected things happen with you, like something, it can be in a good way or it can be in a bad way. So you have to describe about it. आपको ये इनके बारे में जो चीज़ आपके पास हुई है, आपके साथ हुई है crowded place में, आपको वो अपनी क्लास में describe करना है. Okay, so let's move on. So we are going to read about the writer, okay, about some things about writer, who he was and about him, and then we are just going to have a bit of summary about this chapter before going to the chapter, right. So Mulk Raj Anand, as we all know, he is the writer of this chapter, right. Now he was a prominent Indian writer who wrote several novels, short stories and essays in English. He was born in Peshawar, now in Pakistan. He is known for his realism in describing the plight of the poor in India in the novels Untouchable in 1935 and Coolie in 1936. Some of his other works are The Village in 1939, The Sword and the Sickle in 1942, The Big Heart in 1945. He often exposed social evils and injustices prevalent in India in his works. He was briefly involved in the freedom struggle against the British. He founded the art magazine Mark. He was also the recipient of the Satya Akademi Award in 1968 and Padma Bhushan in 1967. So just about Mulk Raj Anand, I'll just sum up it. He was a prominent Indian writer, okay, and he was from Peshawar, which is now in Pakistan, and he wrote several novels. उन्होंने बहुत सारे novels लिखी थी, like Untouchable है, Coolie, The Village, okay, The Sword and the Sickle, The Big Heart, ये सारे उनके novels की name हैं जो उन्हें लिखे थे. Okay, and he also got awards like Satya Akademi Award and Padma Bhushan, राइट. एंड उनकी जो नॉवेल्स हैं, उन जो बुक्स लिखते थे वो किसके बारे में होती थी, जो इनजस्टिस होती थी पुअर्स के लिए, राइट, जो पुअर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, राइट, गरीबों को जो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था इंडिया में, वो उनके बारे में बुक्स लिखते थे. ओके, नाउ द लॉस्ट चाइल्ड. नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट रीड द समरी ऑफ दिस चैप्टर. द लॉस्ट चाइल्ड इज़ अ शॉर्ट स्टोरी पब्लिश्ड इन 1934. The story is set in a village fair. It revolves
around a child who gets lost in pursuit of finding different things. Anand shows the struggle the child goes through in the village fair. The story ends by giving a message regarding the true value of parents. So what this story is about? This story is about a lost child. एक बच्चे के बारे में जो मेले में खो गया था, right? And this is a short story and it was published in 1934. Now this story, in this story, what is the scene? That there is a village. एक village है, वहाँ पे एक बड़ा सा मेला लगा हुआ है, right? Now over there is a small child. There is a child who who walks in the fair. वो fair में जाता है वहाँ पे, and he gets lost over there. ठीक है. Now Anand shows the struggle of the child goes through the fair. Now what does Mulk Raj Anand do in this chapter? Like he wrote this book. In this book, what is what he is trying to express is कि जो बच्चा है जो खो चुका है फेयर में, उसका स्ट्रगल कि वो कैसे अपने पेरेंट्स के पास वापस जाता है, तो उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है, राइट. सो ही इज़ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रगल थ्रू विच दिस चाइल्ड गोज इन द स्टोरी. Okay, now the story also ends with a message, like we can say moral or a lesson about the true value of parents. इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें एक चीज़ पता चलेगी, वो है true value of parents. ठीक है. Now let's go to the chapter. So our chapter is the lost child, right? So let's begin to read this amazing chapter. Okay. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy between his father's legs, brimming over with life and laughter. "Come, child, come," called his parents, as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. Now we have read till over here. Okay, so let's understand what they're talking about. Okay, so it was the festival of spring. So when this boy was going to a village fair, ठीक है, जब बच्चा वहाँ पे जा रहा था मेले में, तो उस टाइम कौन सा फेस्टिवल था? इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. ठीक है, वी कैन से स्प्रिंग सीजन था, एंड स्प्रिंग सीजन में जो फेस्टिवल होता है, इट वॉज लाइक दैट. नाउ फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दे आर डिस्क्राइबिंग यू कि वहाँ का एटमोसफियर कैसा था, क्लाइमेट कैसा था, ठंडा था, गर्म था, लाइक इट वॉज टू हॉट ओवर देयर और वेदर इट वॉज टू कोल्ड ओवर देयर. ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. राइट, तो वहाँ पे लाइक जब बादल होता है, राइट, हमें थोड़ा फॉग सा दिखता है, राइट. सो इट वॉज दैट काइंड ऑफ एटमोसफियर. ठीक है, एंड इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग काइंड ऑफ. ठीक है, so it was very good atmosphere. The writer is trying to tell you that it was very good pleasant atmosphere. ठीक है, बहुत ही pleasant climate था. ठीक है, cool type. Now what happened? Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. Now कुछ लोग चल के जा रहे थे फेयर पे, कुछ लोग they were having a ride, जैसे horse ride होती है ना, like that. So they rode on horse. So of course they had a horse ride. Then others sat on, being carried on bamboo and bullock carts. We have seen bullock carts, right? सामने तो bulls रहती हैं, like cow or a bull, ox we can say, not cow. So उनके पीछे एक बैठने की जगह रहती है, तो उसे हम कार्ट बोलते हैं. तो बुलक कार्ट होता है एक्चुअली वो. ठीक है, तो कुछ लोग बुलक कार्ट में बैठ के जा रहे थे, like some others sat, being carried in bamboo and bullock cart. ठीक है, तो कुछ लोग चल के जा रहे थे, some walked, some rode on horses, they had a horse ride, right now, and some they sat on bullock carts and bamboos, right. Now one little boy between his father's legs, brimming over with life and laughter. "Come, child, come," he called his parents, as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. Now among these people, बहुत सारे लोग थे जो चल के भी जा रहे थे. They were having horse ride and they were going by the bullock cart, right.
उनमें से एक बच्चा था, दैट वॉज वन लिटिल बॉय, एंड ही वॉज वॉकिंग इन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स. वो कहाँ पे वॉक कर रहा था? अपने फादर के लेग्स के बीच में वॉक कर रहा था. इट्स फनी राइट. नाउ ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. अब वो क्या कर रहा था? उसको बहुत लाइक ऑफकोर्स छोटे बच्चों को अगर आप फेयर में लेके जाओगे, मेले में लेके जाओगे, तो दे विल फील वेरी हैप्पी. उन्हें बहुत खुशी होती है राइट. उन्हें ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट डे है उनकी लाइफ का राइट. द सेम वे ये जो लिटिल बॉय था उसे बहुत खुशी हो रही थी कि वो फेयर पे जा रहा था. सो ही वॉज वॉकिंग इन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स एंड ही वॉज ब्रीविंग ओवर लाइफ एंड लाफ्टर. ठीक है, मतलब वो बहुत ही खुश था. नाउ कम चाइल्ड कम called his parents. His parents, he said to the child, he called his child, come child come. ठीक है, as he lagged behind, मतलब जैसे वो पीछे रह गया था, तो उसके जो पेरेंट्स हैं उनने उसे बुलाया, कम चाइल्ड कम. ठीक है, जैसे हम कभी कभार क्या होता है, हमारे पेरेंट्स आगे होते हैं वेन एवर वी गो टू अ शॉपिंग मॉल. अगर हम शॉपिंग मॉल जाते हैं, हम मार्केट जाते हैं, तो हमारी कभी कभार होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्राउड होती है, तो हमारे पेरेंट्स तो आगे चले जाते हैं और हम पीछे छूट जाते हैं राइट. वी लैग बिहाइंड. द सेम वे दिस चाइल्ड, वन लिटिल बॉय, ही लैग्ड बिहाइंड एंड व्हाट हैपेंड, हिज पेरेंट्स दे कॉल्ड हिम कम चाइल्ड कम. ठीक है. नाउ दिस चाइल्ड, व्हाई डिड ही लैग बिहाइंड? ये बच्चा पीछे कैसे छूट गया था? व्हाई डिड लाइक पीछे कैसे रह गया था? बिकॉज ही गॉट फैसिनेटेड बाय द टॉयज. हाउ? ही गॉट फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे. अब वो क्या चल रहा था, जैसे रोड होती है, हम रोड पे व्हीकल्स आती है ना राइट, तो दो एंड्स होते हैं, एक तरफ तो लाइक ट्रीज़ वगैरह होते हैं दोनों एंड्स में. तो क्या हुआ था, जो चाइल्ड है ये ऐसे ही मेले में जब गया तो बीच में तो वॉक करने की स्पेस होती है, एंड दो साइड होती हैं किनारों में, लाइक वहाँ पे एक लाइन बनी हुई थी लंबी, जहाँ पे टॉयज़ की शॉप्स लगी हुई थी बहुत सारी. ठीक है, तो वैसे वहाँ पे जो टॉयज़ लगे हुए थे उनसे जो बॉय था वो बहुत ही फैसिनेटेड हो गया था. मतलब उन्हें उसे वो सारे टॉयज़ बहुत ही सुंदर और अच्छे लग रहे थे, तो उनको देखने के कारण वो पीछे रह गया. ही लैग बिहाइंड बिकॉज ही गॉट फैसिनेटेड बाय द टॉयज़ विच बाय द टॉय शॉप्स दैट लाइन द वे. ठीक है, वे मतलब सीधे चल रहे हैं, सो द लाइन द वे मतलब जैसे अगर रास्ता सामने की तरफ जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, तो उसी डायरेक्शन में आपकी जो शॉप्स लगेंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? द शॉप्स दे वर प्रेजेंट ओवर देयर लाइन द वे राइट. सो द शॉप्स दैट लाइन द वे. Now he hurried toward his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. अब क्या हुआ, उसके पेरेंट्स ने तो बुला दिया कम चाइल्ड कम, तो जो चाइल्ड था वो ऐसा नहीं कि वो वहीं पे खड़ा हुआ है. ही क्विकली ran toward his parents. He quickly went over there, मतलब वो जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास चला गया. He hurried towards his parents, मतलब वो जल्दी से अपने फादर या मदर के पास चला गया. And his parents, I mean his feet obedient to their call. Obedient मतलब बात मानना. ठीक है, as we say he is a obedient child, she is a obedient child. मतलब ये मतलब पेरेंट्स की बात मानती है, अपने एल्डर्स की बात मानती है, तो obedient हम उस वे में कहते हैं. तो जो बॉय था वो भी बहुत obedient था अपने पेरेंट्स के लिए. तो जैसे ही उसके पेरेंट्स ने उसे बुलाया तो वो अपने पेरेंट्स के पास चला गया. सो his feet were obedient to their call. ऐसा भी हो सकता था कि देयर पेरेंट्स दे वर कॉलिंग द चाइल्ड कम, बट द चाइल्ड वो वहीं पे रह लेता, वो तो जाता नहीं अपने पेरेंट्स के पास. क्यों? क्योंकि उसे तो वो बहुत टॉयज़ अच्छे लगे, वो तो ख़रीदने की भी जिद करता राइट, वहीं पे खड़े होके. बट ये जो लिटिल बॉय था, जैसे ही इसके पेरेंट्स ने उसे बुलाया कम चाइल्ड कम, तो ये बॉय ही हर्रिड टूवर्ड हिज पेरेंट्स, मतलब जैसे ही उसके पेरेंट्स ने बुलाया वो जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास चला गया. फाइन. Now, and his eyes were still lingering on the receding toys. अब receding मतलब जैसे कि अगर आप जैसे जा रहे हो, ठीक है, you are walking and suppose you can say that you are walking और एक टॉय शॉप है जो आपके पीछे जाती है. जैसे हम आगे जाएंगे तो जो शॉप है वो पीछे जाती जाएगी, हमें ऐसा लगेगा ना कि वो तो दूर जा रही है, पीछे जा रही है. हम सपोज इट लेन में अगर हम सामने चलेंगे, तो ऐसे ही जो बॉय था वो तो अपने पेरेंट्स के साथ सीधा जा रहा था, ही वॉज गोइंग स्ट्रेट, और जो उसकी टॉय शॉप्स थी जो उसे बहुत अच्छी लगी थी वो पीछे जा रही थी उसके हिसाब से. ठीक है, तो मतलब इट वॉज रिसाइडिंग. बहुत मतलब कुछ टाइम के बाद ऐसा लगेगा कि वो टॉय शॉप किधर गई, दिखेगी ही नहीं वो. सो इट गॉट डिमिनिश्ड लाइक दैट. ओके,
so his eyes were still lingering on the receding toys. I hope this is clear to you. So let's continue. As he came to where they stopped, they had stopped to wait for him, he could not suppress his desire, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. "I want that toy," he pleaded. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. His mother, melted by free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, and said, look, child, what is before you?" It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. So we have done till here. Okay, so let's quickly see what is the meaning of this. So as he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress his desire, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. Now what happened? This boy, he went to his parents where they were standing and waiting for him to come. Okay? Now what happened? This boy, he could not even suppress his desire. मतलब वो अपनी जो उसको टॉयज चाहिए थे वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था. उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसकी बात नहीं मानेंगे, दे विल नॉट बाय द टॉयज फॉर हिम, बट वो अपने डिज़ायर को सप्रेस नहीं कर पाया था. ही कुड नॉट सप्रेस हिज डिज़ायर. मतलब वो उसका डिज़ायर क्या था? उसे वो टॉयज चाहिए थे जो उसे बहुत अच्छे लगे थे. सो ही वॉन्टेड दोज टॉयज, राइट. सो ही कुड नॉट सप्रेस हिज डिज़ायर. मतलब उसे जो चीज़ चाहिए थी वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था. सो दिस बॉय, ही कुड नॉट सप्रेस हिज डिज़ायर. मतलब उसका डिज़ायर ये था कि उसे वो टॉयज चाहिए थे, और उसे अच्छे से पता था कि उसके जो पेरेंट्स है, दे आर नॉट गोइंग टू बाय दोज टॉयज, बट ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ. सो व्हाट ही डिड, he could not suppress his desire, and even though he well knew the old cold stare of refusal मतलब किसी चीज़ के लिए जब हम मना कर देते हैं तो इसे हम रिफ्यूज़ करना कहते हैं, राइट. सो दैट इज़ द रिफ्यूज़ल, ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल ओवर हियर. ठीक है. तो जैसे कि अगर हम अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, लाइक हम उनकी आइज़ को देख के बता सकते हैं कि वो मना कर रहे हैं. ठीक है. तो वैसे ही जो बॉय था उसके साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है. सो वॉट इज़ दैट, ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज. ठीक है. उनकी आंखों में दिख रहा था कि दे आर नॉट हैप्पी विद दैट, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू बाय द टॉय. सो ही कुड सी द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज. नाउ व्हाट डिड द बॉय से? ही सेड, आई वॉन्ट दैट टॉय. ही प्लीडेड मतलब उसने लाइक जैसे हम कहते हैं ना कि हमें ये टॉय चाहिए प्लीज़, लाइक दैट ही प्लीडेड. ठीक है. दैट आई वॉन्ट दैट टॉय, मेरे को ये टॉय चाहिए. ठीक है. ही प्लीडेड. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. Now what happened? The boy's father, he looked at him red-eyed, मतलब एकदम गुस्से से देखा. ठीक है. And in his familiar tyrant's way. Now what is tyrant? Tyrant is a cruel man. जो like cruel man होते हैं गुस्से में, और even we can say strict man होते हैं, बहुत ही ज़्यादा strict. Tyrant's way, a cruel man. ठीक है. तो जो उसके फादर थे, ही लुक्ड एट हिम रेड आइड, मतलब एकदम गुस्से से देखा, इन हिज फैमिली टैरेंट्स वे, एकदम क्रूअल मैन की तरह. नाउ हिज मदर, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड. नाउ व्हाट हैपेंड? द बॉयज़ मदर, शी वॉज मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे. मतलब इतना कूल था क्लाइमेट, इतना प्लीजेंट था क्लाइमेट कि जो उसकी मदर है वो लाइक मेल्ट हो चुकी थी बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे. मतलब शी वॉज, उनका जो मूड था वो बहुत ही लाइक वी कैन से पेशेंट इनफ हो गया था. ठीक है. या फिर कूल हो गया था. रहता ना शांति टाइप कि दे आर नॉट गोइंग टू स्कोल्ड द बॉय, दे आर नॉट गोइंग टू बीट द बॉय, दे आर नॉट गोइंग टू स्कोल्ड हिम, बट येस दे आर गोइंग टू जस्ट आराम से उसे समझाएंगे, राइट. तो एकदम लाइक जो उनकी मदर का मूड था वो एकदम फ्री स्पिरिट हो गया था. लाइक इट गॉट मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे. मतलब एकदम टेंडर हो गया था, राइट. कूल हो गया था उनका जो वी कैन से द मूड, प्लीजेंट हो गया था. ठीक है. सो हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर हैंड टू होल्ड सेड, लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू? इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड field,
pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. Now what happened? The mother, she asked the child to hold her finger. उसकी मम्मी थी, उन्हें अपनी फिंगर दी कि टू द बॉय कि वो उसको होल्ड करे. एंड देन व्हाट शी सेड टू द बॉय, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू. ठीक है, उसके सामने देखने के लिए बोला चाइल्ड को. ठीक है, नाउ ही सॉ ओवर देयर व्हाट वाज देयर. देयर वर फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड. तो उसने जब सामने देखा, उसने क्या देखा? एक मस्टर्ड फील्ड देखा. रेड फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, मतलब मस्टर्ड फील्ड में फ्लावर्स आ रहे थे. एंड दे वर लुकिंग लाइक पेल मेल्टिंग गोल्ड. तो जो मस्टर्ड ये फ्लावर्स होते हैं, आई होप वी ऑल हैव सीन दैट. ठीक है, वो येलो कलर के होते हैं. तो अगर आप देखोगे बहुत सारे मस्टर्ड फील्ड है तो मतलब बहुत सारे मस्टर्ड के प्लांट होंगे. तो वैन वी विल सी फ्रॉम अ डिस्टेंस, अगर हम थोड़ा उन्हें दूर से देखेंगे तो हमें लगेंगे कि दे वर लुकिंग लाइक अ मेल्टिंग गोल्ड. ठीक है, दे वर लुकिंग लाइक पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड. मतलब जैसे हम दूर दूर तक अगर अपनी नज़र वहाँ पे पहुँचाएंगे तो हमें ऐसे लगेगा कि वो पेल मेल्टिंग गोल्ड की तरह दिख रहे हैं. ठीक है, so I hope you have understood till what we have done in this presentation, right? So please read this chapter again. So thank you.